Good morning, students. How are you? I hope that you will fine at home. Okay. Today I will tell you the textbook of class 8. Our history book. History book named Our Past 3. Geography, Resources and Development. And civics book that is named Social and Political Life 3 part. And today we will discuss first chapter of our history. History. Do you know history? History is related with the past events that we combine together our past history in events, a set of events we can say. Let us start. That what is important according to history? History is based on the dates. क्योंकि हिस्ट्री के अंदर डेट्स के आधार पर ही हमारे पूरी हिस्ट्री को डेवलप किया गया है कि हमारी जो हिस्ट्री है डेट्स के आधार पर मेंशन की गई है. क्लासिफिकेशन. अब हम हिस्ट्री को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. 1817 में हमारे जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हुए थे. उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, Hindu, Muslim and British. And this periodization is followed so many times, a long time we can count. In the next, we can discuss that our historians divide our history into 3 periods. Mainly, basically we can count them that ancient period, medieval period and the modern period. And how the historian divide that history into 3 periods. What are the bases? We basically know about that, what sources they use to divide history into 3 periods. Sources. अब sources की बात हम करेंगे यहाँ पर कि sources उन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किए थे. उन्होंने जो भी हिस्ट्री से डॉक्यूमेंट्स जो आर्चिव में आज के दिन हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं, वो सभी आर्चिव से उन्होंने हिस्टोरियंस ने लिए थे. उनके बेसिस पे उन्होंने हिस्ट्री को हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब क्लासिफिकेशन के बारे में हमारे किसने कहा है, एक तो हमारे जेम्स मिल हैं. कब? 1817 में. ओके. इन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम दिया, अ मैसिव थ्री वॉल्यूम बुक नेम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. That is the name of the book, which is written by James Mill. James Mill, he is a Scottish economist, political philosopher. James Mill was a Scottish economist, and political philosopher. He divided Indian history into 3 phases. First one is Hindu, second Muslim and third is British. And all the 3 phases accepted for a long genre we can count. Hindu, Muslim and British. 3 phases.
These three phases were followed for a long journey. After a long time ago, historians divided our history into three periods. Three periods including the ancient period, the medieval period, and the modern period. Indian historians divided Indian history into three parts, including ancient, medieval, and modern period. अभी हमने बात की क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करेंगे सोर्सेज की कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे हिस्टोरियंस ने किन किन सोर्सेज का यूज किया. सोर्सेज आर द डॉक्यूमेंट्स विच वी कैन फाउंड टुडे इन आवर आर्चीव्स. आज के दिन भी जो प्लानिंग्स हमारे टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मतलब वो रिकॉर्ड रखते थे, वो सभी उन्होंने आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं. कहाँ पर? We can find them in archives. Okay. आर्चीव्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उनके अंदर उन्होंने क्या रखा है, जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी, प्लान, डिसीजंस, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट दे सेफली preserve. So historians use the documents which are preserved by British administration. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सोचते थे कि उनकी जितनी भी प्लान, पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड अदर थिंग्स दैट दे डू, दे कीप देयर रिकॉर्ड इन a written form, and these written form help historians to know about the history of our. Plan, policy, decisions, and investigation all we get from preserved records.
Now, records. अब देखेंगे कि जो ये रिकॉर्ड्स थे ये सभी मतलब राइटिंग्स में कॉपी किए गए। किनके द्वारा? कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट क्या होते थे? रिकॉर्ड्स को सुंदर हैंड राइटिंग में कॉपी करने का काम करते थे उस टाइम पे। जैसे हम आज के दिन प्रिंटिंग प्रेस का यूज करते हैं, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी। ये प्रिंटिंग प्रेस 19th सेंचुरी के हाफ में, मिडल में हमें मतलब मिली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस से मल्टीपल कॉपीज दे डेवलप्ड एंड सेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशंस, and different things were used to develop the history of the Indian history. Calligraphist. That is the new word for you. Who write beautiful handwriting. Sorry. And these calligraphists almost appointed for the copying of the multiple records. So that record was available in the multiple departments, multiple administrations, and that's why they copied one record into so many copies, and these were done by the calligraphist. Surveying became important in the middle of the 19th century. Surveying work occurred only for the mapping the generation and mapping the country's population. सर्वे इसलिए इम्पोर्टेंट मानते थे वो, ताकि वो सभी जनता के बारे में जान सकें। जिस तरह से आज के दिन जनगणना होती है, उस टाइम पे सर्वे रिकॉर्ड रखा जाता था। सर्वे को वो लिख करके रखते थे, जैसे हमारे पास आज के दिन वो सभी सर्वेज अवेलेबल्स भी हैं। सर्वे के आधार पर भी हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की है। सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, सर्वेइंग करना, कि जो हमें उस टाइम की जनरेशन के बारे में, ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि उस टाइम पे हिस्ट्री के अंदर के क्या क्या हुआ था। सभी प्लान और पॉलिसीज़ के बारे में हमें सर्वे से, उस टाइम पे सर्वे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई क्योंकि ये पूरे डिटेल में किया जाता था, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही जैसे आज के दिन भी सर्वे किया, यदि हम करते हैं सर्वे तो क्या करते हैं, बहुत ही डिटेल के साथ हम चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस हमारे ब्रिटिशर्स ने किया था कि सर्वे को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। सर्वेइंग इज बिकम वेरी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिशर टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।